Good morning, students. How are you? I hope all you are well and fine. So, students, today we are going to discuss about chapter number 8, class 11th, from your book of uh, Hornbill. So, uh, we have discussed already summary and also introduction, and today we are going to discuss about on the explanation of this lesson. I will read it and I will translate the notes only. Okay. Original note is above and note is below. Okay. So explanation is below. It means explanation of this lesson. In each paragraph below there is explanation, and I will explain from the note, and I will read the original text. Okay. So let's begin. A farewell half moon floated in a perfect blue sky in the morning. We said our goodbyes. Extended banks of cloud like long French loaves glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with rose tinted blues. Now that we were leaving Rahu, Lamo said she wanted to give me a farewell present. One evening, I had told her, though Daniel, that I was heading toward Mount Kailash to complete the Korah, and she would said that I ought to get some warmer clothes after taking back into her tent. She managed carrying one of the long-sleeved sheepskin coat that all the men wore. Satan that sized me of us we crumbled into his car. Ah, yes, he declared Drogba, sir. We took a shortcut to get off Chang, Changtang, or Satan knew a route that would take us southwest almost directly toward Mount Kailash. It involved crossing several fair high mountains pass, he said, but no problem, sir. He assured us if there is no snow, that was the uh, likelihood of, I asked, not knowing, sir, until we get there. So here we may see that there is something. The meaning of this love means it is bright, and Korah means meditation performed by Buddhist believers, and you can see that ducking back, going inside, them coming out. Size me up. You can see all this is the meaning from this passage. So ये जो पैसेज है, इस पैसेज में हम ये कोरा शब्द को मैं जब समरी करवा रहा था तभी कहा था कि बाद में उसको एक्सप्लेन करूँगा। कोरा शब्द का अर्थ है मेडिटेशन, यानी जो ध्यान किया जाता है, खास करके बौद्धिस्ट लोग जो ध्यान करते हैं उसी को कोरा कहा जाता है। और अभी ये जो प्रोटागोनिस्ट है अपने कोरा को कंप्लीट करने के लिए ये माउंट एवरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि प्रोटागोनिस्ट क्या किसकी तरफ जाता है, माउंट कैलाश की तरफ जाता है अपनी कोरा को कंप्लीट करने के लिए। जैसे सुबह के समय पे वो घर से निकलता है तो इस समय पर मतलब एक हाफ मून की तरह एक स्काई को देखता है, और साथ ही साथ जो ब्लू स्काई है वो बहुत सुंदर दिखती है। इसका जो लुक्ड है, ये जो क्लाउड है बिल्कुल बिल्कुल फ्रेंच का जो ब्रेड होता है
वो किस प्रकार जैसा दिखता है इस प्रकार दिखता है। और सूरज का जो किरण है ना, और सूरज का जो किरण से ये चमकाते हुए ये बिल्कुल पिंक कलर का दिख रहा है। और उसका जो सूरज का जो रेस है माउंटेन की ओर मतलब तिरछे रूप में मतलब पड़ रहा था। और ये एक प्रकार की बहुत सुंदर दिख मतलब दृश्य था। तो जैसे वो राभू से अपना जो फेयरवेल यानी विदाई ले रहे थे, और तभी लवमा नाम का एक महिला है जो उनको क्या कर रही थी, एक फेयरवेल गिफ्ट के रूप में और प्रोटैगनिस्ट को वो कुछ देती है जो खास करके, और एक लंबा लॉन्ग स्लीव्ड स्किन स्क्रिप जो स्किन का जो कोट है वो उनको देती है। और साथ ही साथ साथ ही साथ दानियल को उनके साथी के रूप में वहाँ दानियल को भी वो लेते हैं। और इस प्रकार से अपनी यात्रा को वहाँ से शुरू करते हैं। शैतान नाम का एक व्यक्ति जो है अपना मतलब एक ड्राइवर है, कार ड्राइवर है, और उन्हीं की कार को हायर करते हैं और वो उन्हें लेकर के आगे की तरफ बढ़ता है। और आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते वो यही कहता है कि एक शॉर्टकट की तरह से होकर के वो उनको लेकर के चलता है। और चलते चलते वो यही कहता है कि यदि और बारिश के कोई मतलब स्नो फॉलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी तरीके से और आसान तरीके से वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर स्नो फॉलिंग है और अगर उसमें बर्फ़बारी है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो आइए हम उसका सेकंड पैराग्राफ को देखते हैं कि सेकंड पैराग्राफ में फिर क्या लिखता है। फ्रॉम द जेंटल रोलिंग हिल्स ऑफ राहु द शॉर्टकट टुक अस क्रॉस vast open plains with nothing in the except a few gazelles that would look up from nibbling the addict pasture and town before bounding away into the void. Further on, where the plains become more stony than grassy, a great herd of wild ass come into view. Shaitan took us. We were approaching them long before they approached. Kang, he said, pointing toward a far off puddle of dust. When I drew near, I could see the herd galloping and mashes, wailing and turning in a tight formation as if they were practicing uh, maneuvers on some predetermined course. So prompts of dust blowed into the crisp clean air। तो कुछ वर्ड मीनिंग इस तरह यहाँ पे दिया है। मैं जैसे कि पहले कहा था, ऊपर की पैराग्राफ जो होगी वो आपकी ओरिजिनल टेक्स्ट से होगी, और नीचे की पैराग्राफ जो होगी वो नोट्स रहेगी, और मैं आपको नोट से ही समझा रहा हूँ। आप इस प्रकार वर्ड मीनिंग को देख सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ने पर आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप उसे रख सकते हैं। तो आइए सेकंड पैराग्राफ को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो रूट है वो पूर्ण रूप से खुला और प्लेन था। जैसे कि ये लोग राबू से अपने यात्रा को शुरू करते हैं, और जैसे कि वो देखते हैं, जैसे चलते चलते वो देख रहे थे जो मतलब फील्ड है वो किस तरह से ग्रास में भरी हुई है, और कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का जो रेन ड्रॉप भी वहाँ पे गिरा हुआ है। और साथ ही साथ वो जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं तभी उन्होंने देखा कि जो वाइल्ड आसेस है वो वाइल्ड आसेस यानी जंगली जो गधा है ना, और उसको वो देखते हैं। और शैतान उनको यही कहता है कि
ये वाइल्ड आर्स जो है ये अक्सर यहीं पे रहते हैं और शैतान पॉइंटेड करते हुए एक डस्ट की तरफ दिखाता है जिसको कैंग कहा जाता है, जो उनके लोकल लैंग्वेज में, यानी उनके जो वहाँ के जो रीजनल लैंग्वेज है और यहाँ सॉरी उस एरिया का जो भाषा है उसकी भाषा के ऊपर कहता है। जैसे कि हम राजस्थान में मतलब क्या है, रेत के जो टीला होता है उसको एक अलग भाषा से बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार वहाँ पे एक मतलब डस्ट का को हिप हो सकता है, पायल हो सकता है ना, उसको इसी प्रकार नाम से पुकारा जाता है। सो किस नाम से? कैंग नाम से पुकारा जाता है। सो जैसे जैसे वो अपने डेस्टिनेशन के नज़दीक होते जा रहे थे तो एक लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो है ना, और वो देखते हैं, वो एक मिलिट्री एक्सपीरियंस की तरह उनको लगता है और जो डस्ट है एयर में बिल्कुल भरे पड़े थे। तो ऐसे के हालातों में होकर के वो आगे की तरफ वो गुजरते हैं, आगे की तरफ वो जाते हैं। As hill started to push up once more from the rocky wilderness, we passed solitary drogbash tending their flock. Sometimes men or sometimes women, this well wrapped figure would pause and stare at our car, occasionally weeping as we passed. When the track took us close to their animals, the ship would take evasive action, veering away from the speeding vehicle. We passed nomads' dark tents pitched in a blended isolation, usually with a huge black dog, a Tibetan mastiff, and standing guard. These beasts would cook their great big heads with they become aware of our approach and fix us in their sights. As we continued to draw closer, they would explode it into action, speeding and directly towards us like a bullet from a gun and nearly as fast. सो यहाँ पर भी आप वर्ड मीनिंग को देख रहे हैं जो येलो कलर का दिख रहा है। ठीक है, अब मैं आपको ये जो थर्ड पैराग्राफ है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे वो आगे की तरफ बढ़ते हैं एक रॉकी एरिया में होते हुए, पथरीली भूमि में होते हुए, और वो एक प्राइवेट कोरस न्यूटरिंग ग्रुप ऑफ बर्ड्स, both men and women started at their car, some waved at them. तो वहाँ पे एक लोगों के ग्रुप को वो देखते हैं, जो लोग की उनकी कार की तरफ वो देखते हैं, और जैसे वो आगे और भी नज़दीक उनकी ओर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे एनिमल्स होते हैं, है ना, बहुत स्लिपरी पथ है, और एकदम से वो जैसे देखते हैं तो उनका जो कार का जो डायरेक्शन है ना कि दूसरी तरफ होता है, और वो उनको देखते हैं तो तो ये जो लोग हैं एक नमाड के लोग हैं। नमाड यानी बंजारा तरह के लोग हैं। यहाँ पे टेंट लगा करके वो रहते हैं, जितने समय तक उनको वहाँ पे रहना होता है ना, उतने समय तक वो रहते हैं। उनका टेंट का जो कलर है बिल्कुल ब्लैक है, और वहाँ पे ये देखा गया कि जो ब्लैक डॉग है जो उनके टेंट के सामने गार्ड की तरफ वहाँ पर क्या करता है, वो उनको मतलब एक गार्ड की तरह वो वहाँ पर उनको मतलब रखवाली करता है। और जैसे कार उनके नज़दीक होती है तो वो बहुत ही तेज़ से, जैसे बुलेट से कोई फायर निकल कर के सामने आते एक गोली आके चलता है ना, तो इसी प्रकार एक स्पीड मतलब बहुत तेज़ से वो कार के पीछे
मतलब भागने की कोशिश करे थे। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे पूरा करते हैं, फिर अगला जो पैराग्राफ है और उसको हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।